सब जो हमारे मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद हैं, आपको गुज़श्ता ईद मुबारक. Also my gratitude to you that you are here on a Saturday. I've been told that we have some friends from the foreign media as well, so I will keep some of my remarks, or most of my remarks, in English. So I thought this is a good moment that hum a few topics which we can discuss with respect to the overall economy. Obviously, you have been all very busy post-Eid, covering number of subjects, also on the energy side as well. So a few things which I want to discuss, and of course then we will get into the question and answer session, and of course I will try my level best to answer any queries that you might have as we go forward. So पहले I think macroeconomic stability से शुरू करते हैं, because that's where most of the discussion has been कि मुआशी इस्तेहकाम जो है वो मुल्क में आ चुका है. और from my perspective I've always said that कि जो macroeconomic stability की हम बात करते हैं या मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं, it's not an end in itself, it's a means to an end. It's about basic hygiene. Any economy has to have these elements before it goes forward. And I'll come back to that, because we have been at these periods and at these moments number of times in the last few years as well. So उससे मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ. लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की और सम्राट की जो है मैं बात करना चाहता हूँ कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट. ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट what we have seen is FX stability. What we have seen is rising foreign exchange reserves on the back of very strong remittances, and you have seen that for the first 2 months of Q3 in this fiscal year as well. They are up 32% year on year. और अभी मार्च का भी नंबर आया है. Of course the Eid factor and the Ramzan factor is there, but if we stay on this trajectory, so inshallah we'll get to about $36 billion or thereabouts of annual remittance flows in this country, which would be an all-time high, a record high, inshallah. Exports are holding firm, about roughly 7% growth on that front as well. And on the back of that, we are quite confident that the FX reserves, by the time we get to end of June, will be a little over $13 billion, which puts us in a good stead in number of ways. Now, why this is important? First of all, for international trade, जो local LCs हमने खोलनी है, उसका उसकी जो हमने settlement करनी है, so that जो import led discussion है और imports पे जो हमारी economy जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है, whether it's on the machinery side, whether it's other essential commodities, उसमें कोई रुकावट ना आए. Equally important is everything which was which had stopped in the middle because of our FX and balance of payment situation, ensuring that everything around dividends, profit repatriations, etc. have gone out, and we are back into a BAU status. And that's very critical. That's very critical. The first part was very critical for the domestic industry. The second part is very critical for our existing international investors. If you want to bring in more FDI back into the country, then we need to ensure that our existing international investors are in a good place in terms of what they need to do from a transactional perspective. So ये तो बात हो गई on the external front. अब domestic front में obviously दो चीज़ें बड़ी important हैं. एक जो inflation की बात है, and I do think it's a very important part, and the fact that whatever was said earlier in the week, that we are now
down to 0.7%, which is at a 6 decades low. And we are moving in the right direction in terms of headline and the core inflation as well. But it is also equally important that we ensure that this inflation helps us in number of ways, but also the benefit of this passes on to the common man. तो जो बार बार बात होती है कि आम आदमी में की ज़िंदगी में या आम खातून की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है, and I think that is a very critical question, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो हम जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें. तो उसमें मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कैबिनेट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि ECC will have and will keep a very close review on the essential commodities. ये 51 है इन जो SPI का इंडेक्स है, आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं, इसमें 51 commodities हैं. So if I just talk about the last week, 26 of these items were stable, 10 went down and 15 went up. The items which went up were chicken, उसमें कुछ ऑयल का डिस्कशन था, कुछ और उसमें एलिमेंट्स थे, शुगर का था, but otherwise 10 commodities have come down, and we are very monitoring it very closely so that the जो भी impact है और ख़ास तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमने इस पे मेजर्स लेने हैं वो ECC will guide both the federal ministries, and we will work in conjunction with the provinces and the chief secretaries to ensure कि ये इसका impact जो है वो अच्छी तरह जो इन्फ्लेशन का और उसके लोअरिंग इन्फ्लेशन है उसका impact goes down. So I just want to let you know कि इसका एक institutionalized mechanism is now in place in terms of monitoring of these prices. The second part of it is obviously the markup or the interest rate. CIBOR is now around 12%. So उसमें इंडस्ट्री को जो फ़ायदा है वो तो अपनी जगह है, 22% plus etc. Was what was there about a year back, and CIBOR coming down, especially for those companies, those entities which are leveraged, it's a huge relief for them in terms of debt servicing and their plans for future investment as well. My personal view, there is room to do more in terms of bringing these rates down, and you know, every central bank is worried about the last mile, and we have to be respectful around the autonomy of the state bank and the Monetary Policy Committee, but I think from our perspective there's room to do more during the course of this year to bring the rates down further. So I think वो उसमें जो है वो further इजाफा होगा. Now on the back of this जो मैं कुछ डेटा पॉइंट्स देना चाहता हूँ कि जो सर्वेस की बात हुई है around the business confidence, the investor confidence, the consumer confidence. So business confidence is not us, not the government saying this. I would और उसमें मैंने पहले भी बात की है, जो कुछ सर्वेज आए हैं पिछले 3 से 4 महीने में, उसमें एक मैं PwC का जिक्र करना चाहूँगा जो उनका सर्वे आया है. The top CEOs of this country have said that the economic growth prospects have gone up to 83%. This is on the back of 49%. That was the number last year. So from a domestic investor confidence perspective, it's very critical, because हम FDI की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे लोकल CEOs, लोकल स्पॉन्सर्स इस मुल्क में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी. सो फॉर माय पर्सपेक्टिव ये जो PwC का सर्वे है इज वेरी इंकरेजिंग. द सेकंड वन इज द ओवरसीज चेंबर, जिनका सर्वे आपने पहले देखा है, उसके बारे में आपने बात भी की है, एंड हाउ द फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव द बिजनेस कॉन्फिडेंस has that index has gone up by 9%, and it's important that we keep a very close eye both on the domestic investors and our foreign investors. The stock market here, I mean, you have seen that how that has rallied. It's an important data point, you know, and I do think जिस तरह उसकी capitalization बढ़ी है, और मैंने पहले भी उसका जिक्र किया है कि it's not only about the increase in the capitalization,
but the fact that the new investors are coming into the stock market. That to me is a very critical thing, because we have to diversify a funding base away from banks and other things, and really take it into the capital markets. So I think this is a very critical aspect, and hopefully there will be more investors coming in, and hopefully there will be more supply coming in terms of more IPOs and debt securities going into the stock market. Now, a few more data points in terms of how we seeing or how we have seen the first quarter and the first half of this year. तो ये ईद उल फितर पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, तो उसमें हमने एक रैपिड सर्वे करवाया, एंड आवर व्यू इज, एंड ये PBS के थ्रू ही होता है, आपको पता है जो सर्वेज होते हैं, कि द नंबर दिस ईयर इज क्लोज टू अबाउट 870 बिलियन रुपीज ऑफ इंक्रीज इकोनॉमिक स्पेंडिंग, and the benchmark for this is 870 billion rupees as compared to about. It is a growth, yeah, total. No, it's a total number. ये अभी हम बाद में बात करेंगे जी, if you allow me to just go forward. So that's the total number for this year, and last year number was close to about 720 billion. So that answers your question कि ये incremental growth है, which shows the purchasing power की जो discussion होती है और जो consumer sentiment की बात होती है, this is close to about 140-150 billion rupees increase year on year. So that's one data point which I wanted to leave with you. A few other data points which we have seen in January, February of this year. So the first 2 months of this fiscal year, of this first quarter. So cement dispatches are up by roughly 14%. The auto situation and automobile की जो manufacturing है और उनकी जो output है is over 40%. 2 to 3 wheelers are over 30%. I'm just saying all of this is very important, because I look at mostly the indicators, because that then gets us into the actual situation in terms of how the nominal growth is going to work as we go into the second half of this fiscal year. So based on some of these data points, and we've also seen about roughly 16% increase in the imports of machinery during January, February compared to year on year. और इसमें भी जो है ये जो मशीनरी है ये डिस्पर्स्ड है इन डिफरेंट सेक्टर्स. ये एग्रीकल्चर में भी है, ये टेक्सटाइल में भी है, ये माइनिंग में भी है. So it's quite well dispersed. So all of these data points, in addition to everything which the State Bank has said, which the other multilateral institutions and the partners have said, gives me the confidence that this fiscal year we will close at an overall growth of close to 3%. Now that's where we are in terms of the overall macro situation. Now let's come to the staff level agreement, which was here a few days back. मैं आपके पास ज़रूर हाज़िर होता, but I was in China for the Boao Forum, which was a very important forum to attend, representing the government. But अगर हम staff level agreement की हम बात करें और उसकी successful conclusion of the 6-monthly review, because we are now on a 6-month review pattern. And what has happened there, and the reason why staff level agreement obviously went through and signed, because all our quantitative benchmarks, so number of quantitative benchmarks थे, as you know, in terms of the surplus which we need to have on the fiscal side, and then of course the ceiling, government guarantees की जो ceiling है, जो हमारी spending होनी थी on social indicators, etc. All those quantitative benchmarks were in a good place. And then the structural benchmarks. Structural benchmarks में वो चीज़ें हुई हैं जो पहले history में नहीं हुई हैं. The National Fiscal Pact. And then everyone was saying कि ये agriculture income tax through the provincial assemblies ये हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा.
This is historic. It's absolutely historic. And ये मैं इसलिए ये जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो बात होती है कि जी इस दफ़ा इम्प्लीमेंटेशन उसकी रिगर एंड विगर क्यों ज़्यादा है कंपेयर टू आवर वेरियस प्रोग्राम्स वेयर वी हैव नॉट कंप्लीटेड, उसकी वजह ये है अप फ्रंट बाय इन एंड डिस्कशंस और मुशावरत के साथ जो हम प्रोविंसेस के साथ कर रहे हैं एंड द कंसर्न फेडरल मिनिस्ट्रीज। ये पहले भी बात हो रही थी कि जी वो मिशन यहाँ था, वो चला गया और बात हुई कि नहीं हुई, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा। वो इसलिए है कि हम थोड़ी देर रुकना चाहते हैं, हम सबसे मुशावरत करना चाहते हैं। बिकॉज द ईजिएस्ट थिंग फॉर मी एंड द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू साइन द SLA राइट अवे। वी कैन डू दैट, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सबको साथ लेकर चले। जब हम सबको साथ लेकर चलेंगे उसकी इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में इसी किस्म की इंशाल्लाह मदद और सक्सेस मिलेगी जो हमें पहले 6 महीने में मिली है। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा एक पॉजिटिव तरीके से लेके जाया करें कि ये इट्स नॉट बिकॉज खुदा ना खास्ता उसमें कोई मुश्किलात आ रही हैं। मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि क्वांटिटेटिव बेंचमार्क्स एंड द स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स वी आर मॉनिटरिंग इट ऑन अ मंथली बेसिस with a lot of rigor and vigor, but in conjunction with the provinces and all our concerned ministries. So that inshallah, as the board approves it, we will get an additional $1 billion in terms of the next tranche which is there under the current EFF program. अब इसमें दूसरी चीज ये हो रही थी जो RSF है, Resilience and Sustainability Fund. That was the second element which was being negotiated as we were going through the review of the first 6 months. और वो अल्हम्दुलिल्लाह that went through as well. और उसमें सिर्फ एक चीज़ होगी जो हमें सबको समझना चाहिए कि this is not an upfront disbursement. The way RSF is going to work is the way our multilateral partners work with us. ADB, World Bank, AIB, these are all milestone led, and these are reform measures around climate adaptability, around water resourcing, around our climate architecture. तो वो जैसे जैसे हम ये milestones पास करते जाएंगे, हमें ये 28 month की ये facility है which is in line with the overall 37-month program of the EFF. चूँकि 28 महीने इसमें बाकी बचे हैं तो उसमें हमने ये complete करना है. We are going to have a very robust governance forum around the reform measures which we have agreed, the way we have done on the EFF side. तो ये हम इंशाल्लाह करेंगे in conjunction with the Honorable Minister of Climate Change, और उनके साथ हम इसको आगे लेकर चलेंगे ताकि जो हमने commit किया है उसको हम deliver करें. Because I do think it's very, very important in the Committee of Nations that we deliver on what we have committed. And the Prime Minister has been very vocal and very clear about this, कि ये जो हमने प्रोग्राम साइन अप किया है, और मैं तो उसमें बहुत दफ़ा ये कह चुका हूँ कि ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है और मैं दोबारा दोहराऊंगा और हर वक्त दोहराता जाऊंगा। ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है which is being helped, supported, assisted, funded by IMF and the development partners. We need this for Pakistan. We need this for Pakistan. And usme mein, and this is a good segue into the next point, which is around the structural reforms. Why have we become, or why were we gotten to know as a single tranche country? कि हमने पहली ट्रांच ले ली और फिर जो हमने मुश्किल पॉलिसी चॉइसेस करनी थी, जो हमने मुश्किल फैसले करने थे, वो हम नहीं किए, हमने नहीं किए in the past as well. These structural reforms मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, and those are very, very important कि we stay the course on that, because the reality is what? The reality is, ladies and gentlemen, we have been at this juncture before. जो मैंने पहले भी बात की, ये मुआशी इस्तेहकाम इस मुल्क में पहले भी आ चुका है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पहले भी आ चुकी है. But where do we go from here?
And why don't we go from here where we need to go? जो प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कहते हैं कि ये फंड का आखिरी प्रोग्राम होगा, ये आखिरी प्रोग्राम उसी वक्त होगा जब ये हम डिफिकल्ट पॉलिसी चॉइसेस करेंगे, and we ensure that we carry on with the structural reforms that we said we would, and we are in execution of that. उसके 3 या 4 बेसिक उसके tenets हैं. I've said that before and I will repeat those. The first one is taxation. And taxation is very important because अगर आपने fiscal side पे एक sustainable एक vision करनी है आपने, right? कि हमारे जो expenditures हैं और revenues हैं, मैं बार बार ये कहता हूँ, हम अपने घर का भी खर्चा चलाते हैं तो वो sustainable नहीं है कि अगर मेरी तनख्वाह एक है और मेरे जो है वो एक्सपेंडिचर्स डिफरेंट हैं तो 1-2 दफ़ा तो मैं आपसे उधार ले लूँगा, तीसरी दफ़ा भी उधार ले लूँगा, बट सम पॉइंट इन टाइम आई विल गेट इनटू ट्रबल. सो इसलिए हमें उसका बड़ा एक स्ट्रक्चरल उसका करना है. और इस दफ़ा पे फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर लुकिंग एट इट एंड वी आर इन एग्जीक्यूशन. सो टैक्सेशन साइड पे पहले भी आपसे बात हो चुकी है, मैं कुछ चीज़ों को दोहराऊँगा, बट आई डू वांट टू स्पेंड कपल ऑफ मिनट्स ऑन दिस. We are on track to hit 10.6% inshallah tax to GDP at the end of June. Now this is on the back of 8.8% of last fiscal year. So this is a 1.8% jump in 1 year. So the program was front loaded and we have delivered on, and inshallah we will deliver on that program. और जैसे आपको पता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम, एंड दैट्स द राइट थिंग फॉर कंट्री एज वेल, कि इंशाल्लाह हम 13.5% पे पहुंचेंगे. नाउ इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेजेस, पिछले साल जो हमारे टैक्स रेवेन्यूज और एफबीआर के रेवेन्यूज दे वेंट अप बाय 29%. इंशाल्लाह एज वी डिलीवर दिस ईयर्स रेवेन्यू टारगेट विल बी अप 32.5% ईयर ऑन ईयर. अब ये हुआ कैसे और ये हो कैसे रहा है? और ये हो ऐसे रहा है कि वी आर डीपनिंग एंड एक्सपैंडिंग द टैक्स बेस. सो लेट मी टॉक अबाउट द एक्सपैंडिंग ऑफ द टैक्स, बिकॉज उस पर बहुत बात होती है और मुनासिब भी बात है. आई अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड दैट कि जो पुशबैक हमें आता है कि एक्सपेंशन हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसमें दीज आर ऑल फैक्ट्स विच आई एम मेंशनिंग टू यू, आपके पास भी होंगे कि from traders alone we have collected 413 billion rupees, which is up from 189 billion last year. So this is doubling or more than doubling of the contribution from this segment. इसी तरह न्यू टैक्स फाइलर्स की जो बात हुई है 31 अक्टूबर को, बिकॉज हमने वो डेडलाइन एक्सटेंड की 30 सितंबर से 31 अक्टूबर को, तो इनसे जो न्यू टैक्स फाइलर्स से 105 बिलियन कलेक्ट किए गए, 105 बिलियन कंपेयर टू 45 बिलियन द प्रीवियस ईयर. और इसी तरह टैक्स फाइलर्स डबल्ड फ्रॉम 2 मिलियन टू 4 मिलियन. दैट वाज एज ऑफ 31st October. लेकिन नंबर ऑफ रिटर्न्स विच हैव कम थ्रू, बिकॉज आपको पता है बाद में भी आते रहते हैं, दोज रिटर्न्स हैव क्रॉस 6 मिलियन. We are moving in the right direction, ladies and gentlemen, in terms of expanding the tax base. अब ये हुआ कैसे है और हो कैसे रहा है? That's the overall transformation in FBR which is happening in terms of people, process, technology. Technology की मैं पहले बात कर लेता हूँ. Digitalization driven enforcement. हर कोई आजकल AI की बात करता है और data analytics की बात करता है. We always had the data. The FBR data was there. The data was there on me. In terms of what I own, my properties, my cars, what I get, and then the FBR had that data in terms of कि मैं taxes कितने पे कर रहा हूँ. हमने करना ये था कि मेरा जो मेरा लाइफस्टाइल डेटा है उसको कंपेयर कर लिया जाए कि मैं टैक्स कितना देता हूँ. इसको कंपेयर कर लिया जाए तो लाइफ इज ओके, एंड दैट्स द बेसिस ऑन विच डेटा एनालिटिक्स हैज टू गो फॉरवर्ड, एंड दैट्स हाउ वी आर इंश्योरिंग एनफोर्समेंट. AI driven audit case selections, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एनफोर्समेंट इन कस्टम्स, वो पहले बात हो चुकी है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं कि फेसलेस कस्टम्स का
जो क्लियरेंस टाइम है उससे फीसद नीचे गया, जो रेवेन्यू है उससे 16% ऊपर गया। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, a lot has been said about that previously, has been now fully rolled out in fertilizer, sugar, tobacco sectors. Cement is on the way, beverages, cotton, it's going to be followed by petroleum and ceramics. And we are very very clear कि ये evasion and sales tax integrity को it will take it into next level, not only this fiscal year but as we go forward as well. HR side पे हमारे जो अफसरान हैं, they never had the audit capacity, so we adding capacity on the auditors, and those that hiring is under process, and peer reviews of tax officers etc. and their incentivization evaluation is going forward. जो legislation है, we are taking that forward. Number of you obviously cover the standing committees and the assembly as well. We are very clear we want to take this legislation forward both now and in the money bill as well. एक चीज़ मैं सिर्फ forward looking statement देना चाहता हूँ, because मुझे कुछ मना भी किया जाता है कि जी आप थोड़ा सा रुका करें, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में इतना excited हूँ, and the work which has already been done on the salaried class जो रेट की बात होगी वो इंशाल्लाह the Prime Minister has said that, I've mentioned it, वो इंशाल्लाह during the budget discussion हम करेंगे. लेकिन one of the things is the simplified process. When I said people, process, technology, today even if you are a salaried class person, and all of us, at least I was a salaried class person about a year or a year and a half back before I took on this assignment, how many fields we had to fill, and I was always told कि जी आपको क्या मसला है, कोई इशू नहीं है, आप नॉन एप्लीकेबल कर दें, कहेंगे जी हमारे पे अप्लाई नहीं होता, तो हम कैसे उसको नॉन एप्लीकेबल कोई भी कर सकता है विदाउट टॉकिंग टू अ टैक्स एडवाइजर और टैक्स लॉयर. तो ये तो आपने वापस हमारे में डाल दिया. और विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द टैक्स एडवाइजर्स एंड टैक्स लॉयर्स, I just want to give them a heads up. We are going to simplify this process. The salaried class, inshallah ताला, जो बिल्कुल अपर सेगमेंट में है, अगर उनके कोई फिक्स इनकम पोर्टफोलियोज हैं, उनके कोई इक्विटी पोर्टफोलियोज हैं, उनकी कोई और जायदादें हैं, उनकी कोई और इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो ठीक है, एक नॉर्मल टैक्स रजीम है जिसमें उनको आना पड़ेगा. लेकिन जिसका एक तनख्वाह उसके अकाउंट में गिरती है और उस तनख्वाह पे एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है, तो दोज फील्ड्स आर गोइंग टू कम डाउन टू 10 to 12. इंशाअल्लाह ताला, by the time we ask salaried class of this country to file their tax returns, inshallah in September या उससे पहले, आप सब अपने घरों में बैठ के ये टैक्स फाइल करेंगे, not through tax lawyers and not through tax advisors. So we are very clear कि ये जो regime हमने create की हुई है, और ये people process technology, और ये मैं एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इंशाल्लाह वी विल डिलीवर ऑन दिस, बिकॉज वेरी क्रिटिकल अपार्ट फ्रॉम द रेट, कि हम लोगों के लिए सहूलत क्रिएट करें कि लोग क्यों नहीं आना चाहते. जो हमारे बिजनेसमैन हैं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, हमारे और लोग हैं, वो कहते हैं कि जी हम और आपको ज़रूर दे देंगे पैसे, बाहर से पैसे दे देंगे, हमें इनके हवाले ना करें. तो उसका एक तरीका है टेक्नोलॉजी को, ताकि उसमें शफाफत लाएँ, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएँ, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करें, और इसी तरह जो प्रोसेस है उसको इतना सिंप्लीफाई कर दें कि किसी को बाहर से आपको जाके कोई मदद मांगने की ज़रूरत ना पड़े. आप अपने घरों से, जहाँ भी अपने ये मोबाइल ऐप से वटेवर ये कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसको हम आगे लेकर चलेंगे. दैट्स द फर्स्ट पार्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ऑन द टैक्सेशन साइड. द सेकेंड वन इज़ ऑन द एनर्जी साइड. उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू कर चुके हैं. वैस लगारी साहब, ऑल ऑफ दोज हु एट हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस yesterday as well. और ये बहुत बड़ी बात होती है कि जी ये एक अभी होगा जी, उसके बाद आप क्या करेंगे. I have to give full marks to Minister Pa, and they are leading with structural reforms.
तो ये जो 1/3 ऑफ द टैरिफ विच इज एंड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ विच इज कम डाउन फॉर द इंडस्ट्री, ये बड़ी जून 24 से लेकर अब तक ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं नहीं ये कह रहा, सारी इंडस्ट्री से आप ये बात सुन रहे हैं। और ये क्यों स्ट्रक्चरल है? स्ट्रक्चरल इसलिए है कि जो ये इसको हम सस्टेन कैसे कर सकेंगे, बिकॉज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी। एक दफ़ा आपने कर दिया, उसके बाद आगे कैसे लेके जाएं? एनटीडीसी के जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जो एसओईज के बोर्ड्स, ये जो डिस्कोस के जो बोर्ड्स क्रिएट कर दिए गए हैं, डिस्कोस को फर्स्ट 3 डिस्कोस इन फेज 1, the second the next phase of 3 discos in phase 2, वो भी कल मैं मोहम्मद अली साहब को मिला हूँ, इंशाल्लाह उनकी लीडरशिप में एज एडवाइजर ऑन प्राइवेटाइजेशन। आप देखेंगे कि ये जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, एंड आई विल कम टू दैट इन अ मोमेंट, ये और तेज़ी से इंशाल्लाह चलेगा। और उसके अलावा जो सर्कुलर डेट की बात है, वो भी मिनिस्टर साहब ने भी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है। बट these are very critical as we go forward. The third phase is SOEs and privatization. 24 SOEs हमने हवाले कर दिए हैं privatization commission के, because the Prime Minister has talked about it, a lot of people talk about it, 800 billion rupees to 1 trillion rupees of annual leakages and annual losses which we suffer in the exchequer. We can use it and redeploy it the way अब कुछ redeployment हुई on the energy side into more जो measures हैं जो आवाम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो उसमें अब जो privatization है, उसमें you will see कि PIA की जो relaunch है in terms of EOI is going to be done this month, and as you've seen, and we are very hopeful round 2 is going to inshallah be successful. Because there's so much upside associated with that. Anything associated with the fiscal parts, we have, have resolved these. Mashallah, the European routes are open, and hopefully, as we go forward, the UK situation is also going to come back in. So that's a good way forward. The Roosevelt Hotel is also in the works, and so that is also going to come through. And then there are a few financial institutions. In terms of First Women Bank, HBFC, and going forward ZTBL. So if all goes well, inshallah, these FIs, and as you know, on the privatization side, the banking industry has been in that sense a superstar in terms of a real success story. So these things will go through, and I mentioned in terms of what's happening on the power side and some of the discos which are in the mix. And then the last thing I just want to mention around the structural reforms, because ये बड़ी बात होती है कि structural reforms हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. These are in execution. The three aspects which I just want to mention, one is the right sizing of the federal government, और उसमें मैं पहली बात कर देता हूँ कि मिनिस्टर्स के पास 3-3, 4-4 मिनिस्ट्रीज थी. अगर हमने उनको इफेक्टिव करना है तो वी नीड टू अपॉइंट मिनिस्टर्स टू गेट दैट गोइंग. बट वी हैव द मिनिस्ट्रीज एंड अबाउट 400 टैक्स डिपार्टमेंट्स. हम उसको कैसे आगे लेके चल रहे हैं कि रादर देन वन बिग बैंग, we are taking into various waves. So we have 8 waves. We are done with the first 2 waves. So हम 5-5, 6-6 मिनिस्ट्रीज को आगे लेके चल रहे हैं. उनके अटैच डिपार्टमेंट्स को हम बुलाते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनकी फिर हम, और therefore it has to be a very, इस तरह की बात नहीं हो सकती कि आप बस हम कह दें कि हम ये बंद कर दें, वो बंद कर दें. उनकी बात सुन लें और वो क्या करना चाहते हैं, उसको रिस्ट्रक्चर कैसे करना चाहते हैं, because part of it is also increasing the efficiency. It's not only just downsizing. Therefore it's called the right sizing committee. We are done with the first 2 waves. The cabinet has approved it. It's into implementation. The next 2 waves are going to be presented to the cabinet. The 5th wave is now coming through. Or inshallah ta'ala, by end of June, we would have completed that entire analysis. And what we are looking for, कि इसका कोई quantitative impact अगले साल के बजट में आए, because that's the real test. कितना आ सकता है, because it's over a period of time, but at least signaling शुरू हो जाए कि जो इसका फेडरल गवर्नमेंट का जो ऑपरेटिंग बजट है
उसमें कमी आ रही है. सो दैट्स नंबर वन. नंबर टू, जो उसमें बात है वो पेंशन्स की है और पेंशन रिफॉर्म्स की है. तो उसमें एज यू नो वी हैव गॉन इनटू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड हमने क्रिएट किया है और मल्टीपल पेंशन जो है वो नहीं हो सकती थी. तो देखें, हमारी तरफ से ये सब लोग कहते हैं कि ये चीज़ें होती क्यों नहीं है, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. सो वी हैव स्टार्टेड बाय स्टॉपिंग द ब्लीडिंग. द स्टॉक इज स्टिल देयर. जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि जी ये इस तरह हो गया है और ये जो हमारी पेंशन है उस पर क्यों इम्पैक्ट हो रहा है, बिकॉज दैट, ladies and gentlemen, in trillions of rupees, in trillions of rupees. So we had to stop the bleeding so that at some point in time, like the circular debt on the energy side, we can get a handle around the stock on the pension side as well. ये पहले कभी नहीं हुआ. Let me be also very clear कि जो bleeding रोक की गई है in terms of defined contribution, in terms of our new colleagues joining in the federal government, ये पहली दफा हुआ है इस मुल्क में. तो ये this is structure. The third thing I just want to mention is on the debt side, what we have done in terms of we have bought back government debt about जो आपके सामने है $1 billion हमने किया है. मैच्योरिटीज़ हमने इंक्रीज़ की हैं ताकि जो बंचिंग होती थी, बंचिंग की वजह से जो प्रेशर आता था, उसकी वजह से जो हमें प्रीमियम देना पड़ता था, that maturity has gone to close to 3.5 years, and I think that's very important. And because of that, during this fiscal year, we will have a saving of close to $1 trillion in terms of our debt servicing cost. And so these are very important things. Now, the last thing, and so that we can have now open up for questions, where do we go from here? देखिए, it is about, as I mentioned earlier, we have been here before as well. And I do want to take credit as government. I do want to take credit as cabinet and all our coalition partners in terms of what we have been able to achieve. But we cannot squander this opportunity this time around. We cannot. The country, the nation cannot afford it. इसको कैसे हमने यूज करना है? We have to change fundamentally the DNA of the economy, so that we can be export-led, and I'm sure there will be questions around the last few days and what's coming through, but it cannot change travel of direction in terms of where we are going and where we want to go. So ये बड़ा important है. Export-led growth means productivity-led growth. We cannot protect our industries or without sunset clauses which are not competitive. So every single sector in this country has to export. 1% करें, 2% करें, 5% करें, and you have started seeing that. क्योंकि ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा. In the last 2 months, you have started seeing the auto sector. ये सब आपके सामने है. The auto sector has started exporting. Right? The message has to be clear that every single sector has to export. Number one. Number two, I was in China a couple of weeks back. I was in Al Ula in Saudi with emerging markets finance ministers about 6 weeks back. Maybe the global trade takes a back seat as a lever of growth for the moment. That doesn't stop us from doing what we need to do in terms of our regional corridors. Whatever we are doing with Turkey, whatever we are doing with GCC, whatever we are doing with the Central Asian republics, whatever we can do in terms of ASEAN, etc. So both in terms of every sector has to come in. क्योंकि किसी एक सेक्टर ने ठेका नहीं लिया हुआ है. ये अगर एक्सपोर्ट लेड और प्रोडक्टिव लेड ग्रोथ करनी है तो हर एक ने कंट्रीब्यूट करना है. एंड द ओनली वे दे कैन डू इट इज बाय, क्योंकि हमने जो डिलीवर करना था वो इंशाल्लाह हम करेंगे टू द इंडस्ट्री. और मैं उसमें 1 मिनट में वापस आता हूँ. Everyone else has to make sure that they lead by innovation and they lead with a productivity-led discussion in the industry. And the other thing is we have to diversify our export markets. और उसमें जहाँ कमाल साहब जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, he is taking the lead, and inshallah we will in that direction as well.
Now, two other things and then I'll close. FDI, because that's our road to market, क्योंकि हमने फिजिकल साइड को भी देखना है, डोमेस्टिक साइड को भी देखना है, हमने अपनी एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को भी देखना है, क्योंकि जो पहले बात हुई कि 4% ग्रोथ होता है, इंपोर्ट लेड होता है, वी रन आउट ऑफ एफेक्ट्स, वी गेट इनटू बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, वी गो बैक रनिंग टू द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. तो इसलिए एक्सपोर्ट लेड एंड प्रोडक्टिव लेड डिस्कशन इज द राइट वन. FDI में भी जो पहले लोकल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो बड़े ग्रुप्स हैं, उनका और जो हर एक की जो इन्वेस्टमेंट है इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल. And I've said that very openly for the last 12 to 14 months. Three pain points. High financing cost. I think we have ticked the box. We can do better, and inshallah during this calendar year and as we go forward, it will become even better. Second one, high energy cost. अगर आप इंडस्ट्रियल साइड पे देखें, जब आप जून 24 को, और लगारी साहब ने कल बड़ी डिटेल में आपसे गुफ्तगू की है, मैं उसमें कोई फर्दर इजाफा नहीं कर सकता, 1/3 has gone down by 1/3. So this is not a small number, and I'm very grateful to all the business community around Pakistan, the way they have reacted, the way they have responded on the energy equation as well, और जो उन्होंने बात की है, and of course as we go forward, inshallah इसमें कोई बेहतरी और further news भी इसमें आएगी. And the last thing I just want to mention is high taxation. और तो ये देखें, ये चीज़ें हैं जो हमें पहले एक्नॉलेज करनी चाहिए. अगर हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे उसके बारे में कुछ हम कर नहीं सकते हैं. तो इस दफ़ा हमने जो टैक्सेशन साइड पे ये किया है कि वी हैव प्रीपोन्ड द एंटायर डिस्कशन. You know, whatever the industry had to say, the forums had to say, the associations had to say, जो उन्होंने पहले जनवरी में या फरवरी में आके हमारे से बात कर सकते हैं, वो कोई मई में आके कोई नई बात उन्होंने नहीं करनी है. तो we have been, we at the end of January we started that process, both in terms of requesting all the forums and associations to for asking them to send their proposals, which they have, and we asked the government ministries कि आप अपने जो expenditure के हैं वो हमें बताएं. तो इस वक्त as we speak, we are evaluating all those proposals, and we are evaluating these proposals because this time we have a few known knowns. We know we are in a fund program. We know areas which we can work with. We know, and कल परसों भी ये कोई बात चल रही थी कि वो फंड का मिशन यहाँ पहुँच गया है और वो रेवेन्यू पता नहीं कहाँ से चीज़ें आती हैं. So I just want to very, IMF will be here. They will be here. Middle of May, late May, we will discuss with them in terms of budget proposals, etc. But they're not here right now. Let's be very clear, because we are still evaluating their proposals. We are receiving those proposals. We have to work on those proposals. We have to do our homework. लेकिन ये बस आप सब लोग जो हैं वो जो भी आपके व्यूज़ हैं वो ठीक है, हमारे लिए मुकद्दम है, लेकिन इस वक्त कोई ऐसा मिशन नहीं है टॉकिंग अबाउट द बजट एटसेट्रा. So what we have also done is we have brought in some independent analysts who are helping us, not in terms of how the revenue equation is going to work, but the economic value considerations. That is very critical, because from my perspective, this time around, this was important to have their input. Whether we can, how far we can go, what we can do remains to be seen, but at least we get some independent assessment, some independent views which can help us in ABR and Ministry of Finance. Going forward to the tax policy office is moving to finance, right? So as you know, in January the cabinet decision has been made, so the policy is now going to be with finance. ABR is only going to be about collection, income tax, sales tax, customs, FED, etc. So they are going to go forward, going to be a collection agency जो होना चाहिए ताकि policy जो है वो affect ना हो year on year, because that is one of the biggest issues that we have, कि हर साल because we make the math work तो उसकी वजह से disruption आती है. But short of that structural solution, जिसके लिए हमने advertise कर दिया, inshallah that tax policy office should be up and running in the next few months.
तो उसमें हम प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी एडवाइजरी पे लेकर आएंगे ताकि वो सब कुछ जो है मुशावरत से चले। बिकॉज अगर ये हमने आगे चलना है इस मुल्क में, एक्सपोर्ट लेड, प्रोडक्टिविटी लेड, प्राइवेट सेक्टर लेड, these are the three tenets which are going to be very important. The last thing, international capital markets, ताकि हम जो reliance है वो हम कुछ कम कर सकें। Inshallah, as we stay the course, I'm very hopeful we will get into a single B category, and once we get into single B category, we will access the international capital markets from the Euro, USD, and as you know, the Panda bond discussion is already underway. So we will get some of these independent and international capital market issues going during the course of this calendar year. Post that, and we take it from there. And as I head out with the finance secretary and the governor to the spring meetings to Washington towards end of the month, inshallah we'll be holding meetings with the rating agencies there as well as we go forward. With that, I'm going to stop here so that we get into question and answer session. आप करेंगे जी? शहबाज राना साहब एक्सप्रेस से जी। सर दो चीज़ें, एक अभी आप चाइना गए हुए थे तो आपने चाइना से एक रिक्वेस्ट की थी 10 बिलियन युआन की या 1.3 बिलियन डॉलर की पहले, जब आप वाशिंगटन थे वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, उसकी जो ट्रेड फैसिलिटी उसको इंक्रीज करने की आपने चाइना को रिक्वेस्ट की थी 4.3 बिलियन डॉलर से 5.7, और दूसरा आपने भी और डार साहब भी जब गए थे चाइना तो 3.4 बिलियन डॉलर की एक रिस्केड्यूलिंग है उसके बाद एक्सियम वाली जो गारंटेड है, इनकी क्या प्रोग्रेस है दोनों के ऊपर? तो मैं अब चाइना का भी आपको बता देता हूँ। देखें, चाइना, the two discussions with respect to the rollovers, as you know, we have repaid, and inshallah we are in advanced stage discussions with them to have this refinanced. तो वो मैं आपको बता देता हूँ, we are in a good place there, and inshallah these will be refinanced. The second discussion which I'm personally leading is how we get the Panda bond, the inaugural issue going. उसमें AIIB के साथ भी डिस्कशन है, बिकॉज हमें क्रेडिट एनहांसमेंट की बहुत ज़रूरत है, ADB की क्रेडिट एनहांसमेंट की ज़रूरत है. दिस वाज द सेकंड डिस्कशन विच आई हैड देयर एज वेल. बट ये दो मेन चीज़ें हैं. बट मैं एक आपको बात बताऊं कि देखें, चाइना हैज़ बीन आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हैज़ बीन विद अस थ्रू थिक एंड थिन. आई एम वेरी क्लियर, and inshallah I'll meet my counterpart when I am in Washington as well. These things will come through, Shivasa. So there is no दूसरे पॉइंट. Secondly, sir, अभी आपने फरमाया ट्रेडर्स ने 413 बिलियन टैक्स पे किया. विद ड्यू रिस्पेक्ट, इसमें वो GST पे जो आपने मैंने हम सब ने कमरे में बैठ पे हम सब लोगों ने एक्चुअल जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इनकम टैक्स के, जिसके ऊपर आपका भी मिशन का भी फोकस है. जो 50 अरब रुपए का ताजिर स्कीम का टारगेट था, उसके अगेंस्ट कितनी कलेक्शन है? क्योंकि बाकी भी वो जो 236 वाला है वो आपको पता है कि वो अनरजिस्टर्ड रिटेलर भी अभी तक पे कर रहे हैं. आपकी बात देखिए बिल्कुल दुरुस्त है. अगर हमने सेगमेंट्स विच हैव नॉट बीन स्टेपिंग अप आपके सामने है, वो सेगमेंट्स कोई ऐसी बात नहीं है. रियल एस्टेट है, उसमें ओवरऑल उसमें होलसेल रिटेलर्स हैं, उसमें एग्रीकल्चर है. नाउ वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. वी वेरी क्लियर द व्हाट एंड द व्हाई पार्ट ऑफ इट, बिकॉज देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ. अगर इफ दीज सेगमेंट्स डोंट स्टेप अप, if they don't step up, मैं इसीलिए बार बार ये कहता हूँ, as a country our hand has been forced. जवाद राना साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज अगर these segments don't step up, जो हम रिलीफ की बात करते हैं, जहाँ सर्टेनिटी ऑफ रेवेन्यू रहा है इन द यस्टर ईयर्स, सैलरीड क्लास में रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे रहा है, तो हम कहाँ तक ये ले जाएंगे? वी हैव नो चॉइस बट टू show कि these segments start paying their dues. अब उसमें वी हैव टू start at a certain level, और उसमें ताजर दोस्त was one how part of it. वो बात अब ज़रूर आपकी दुरुस्त है कि how part हमने ठीक किया नहीं किया, but we are very clear कि this segment will be, और मैंने अभी जो post इंटीग्रेशन की बात है और बाकी चीज़ें वो हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे. हमारे पास चॉइस ही नहीं है. हमारे पास चॉइस ही नहीं है कि इन सेगमेंट्स को हम दायरे में लाएं, और अगर हम दायरे में ना ला सके तो हम आपके साथ, और जो मुझे अभी तक याद है आपके साथ डिस्कशन जस्ट आफ्टर बजट ऑन द सैलरी क्लास, तो वो वी विल नॉट बी एबल टू डिलीवर ऑन दैट.
बिकॉज हमने अल्टीमेटली 13.5% टैक्स टू जीडीपी जाना है, और जो बाकी जो अभी भी जो है सिचुएशन, उसमें दोनों चीज़ें हैं। जो आपने अभी जिक्र किया एक्सपेंशन का, आपने सिर्फ एक जिक्र किया। एग्रीकल्चर में मुझे लोग पहले कहते थे ये टैक्स कभी लगेगा नहीं, अच्छा अब वो लेजिस्लेशन हो गई है, अब कहते हैं कि जी ये कभी रिकवर नहीं होगा। तो हमें मौका दें, सूबों के साथ हमने नेशनल टैक्स काउंसिल को दोबारा रीइन्विगरेट किया है, उसमें हम बैठेंगे, मुशावरत के साथ चलेंगे, ताकि हम इन चीज़ों को आगे ऐसे लेकर चलें, क्योंकि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर ना। तो ये जो डीपनिंग है उसमें इन्फोर्समेंट का मैंने पहले जिक्र किया, कंप्लायंस का जिक्र किया, जो हमारी पेंडिंग लिटिगेशन की बात है वो प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा चूँकि उसका खुद जिक्र कर चुके हैं, मैंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि पहले लोग कहते थे कि जी ये तो जी डेकेड से फंसे हुए हैं, ये क्यों आपको रिकवर होगा, और प्राइम मिनिस्टर साहब उसके कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि ना सिर्फ रिकवर हो चुका है और आगे भी इंशाल्लाह अगले 3 महीने में भी आप उसके सबरान देखेंगे। जाफर साहब जी थैंक यू सर। सर ये IMF का जब मिशन आने की खबर आती है तो आप क्लैरिफिकेशन जल्दी कर दिया करें, बच्चे डर जाते हैं तो नहीं, लेकिन आप पहले पूछ ही लिया कि नहीं आप फॉर्म आपकी मेहरबानी है ना, फॉर्म बता दिया करें, आपकी मेहरबानी है, बजाय इसके कि आप पहले शुरू कर दिया करें कि जी बजट डिस्कशन शुरू हो गई है, तो आप जरा पहले जिक्र कर दिया। नहीं करना चाहता स्पोक्समैन क्यों नहीं लगाता, वो जो प्रोएक्टिव हो गया। अच्छा सर, क्वेश्चन आपसे ये है जी कि ये जो आपने पार रेट कम किए हैं ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। एक तो ये है कि ये इंड्योर करेगा और कब तक करेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके डॉलर रेट से है और आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त रेट है ये परपेचुएट करेगा, और दूसरा ये है कि ये कब तक आम कॉमन मैन को शिफ्ट हो जाएगा इसका बेनिफिट। अच्छा ये देखें, मैं पहली बात तो ये है कि मैं आपको ज़रूर आपको बता दूं कि, और मेरी आप सबसे दरख्वास्त भी ये है कि वी आर इन अ 37 मंथ प्रोग्राम, ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, वी आर इन रेगुलर कंसल्टेटिव डिस्कशंस विद देम, तो इसको आप इस तरह का इशू ना बनाएं कि हमें पहले बता, मैं आपको अभी बता रहा हूँ वी आर इन रेगुलर कंसल्टेशन, तो ये इसके लिए किसी स्पोक्समैन होने की ज़रूरत नहीं है, वो डिफरेंट चीज़ों के लिए आ रहे हैं। मैं अब आपको बता देता हूँ कि 2 हफ्ते के लिए मैं आता हूँ जी आपके तरफ में, 2 हफ्ते के लिए यहाँ रिव्यू मिशन था, जो EFF के रिव्यू मिशन था, उससे 1 हफ्ता पहले RSF का मिशन था, तो ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। हाँ अभी गवर्नेंस का आया और वो गवर्नेंस से डायग्नोस्टिक आया, क्योंकि उन्होंने जुलाई में रिपोर्ट देनी है, तो उसके सिलसिले में वो फिर सारी वही बातें हो रही हैं, वो सब लोगों से जाके मिल रहे हैं। और देखें ये मैं भी एक भी बात नहीं, हमने टेक्निकल सपोर्ट मांगी हुई है। देखिए मैं आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बात करता हूँ कि ये मुल्क खुदादार है, हमारे पास इस किस्म की जो सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, इंशाल्लाह आप मिनरल्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे अगले हफ्ते, एंड यू विल रियलाइज कि किस किस्म का पोटेंशियल है और कहाँ हम जा रहे हैं इंशाल्लाह इस सारी डिस्कशन के साथ, विच विल बी ए गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। और देखिए मैं सिर्फ एक जिक्र, मैं आगे बात से बाहर निकलती जा रही है, इंडोनेशिया, कॉपर इज फॉर अस व्हाट निकल इज फॉर इंडोनेशिया, और ये कोई डेकेड्स पुरानी बात नहीं है। उनकी जर्नी जो है आपको मालूम है, और मैं उस वक्त सिंगापुर में खुद मौजूद था और एज अ बैंकर उनके साथ काम करता रहा हूँ। 2013-14 में उनकी जर्नी शुरू हुई है, और 2023 की अगर आप नंबर उनके उठा लें तो उनकी एक्सपोर्ट अराउंड मिनरल्स वो $23 बिलियन, $23 बिलियन। तो ये कोई ये हमारे लिए इंशाल्लाह ताला गेम चेंजर होगा। अब जो आपकी बात हुई है वो देखें, अगर आप कल लगारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो ये डॉलर एंड ऑयल प्राइस एंड ऑल ऑफ दैट, ऑफ कोर्स दीज आर इनपुट्स इनटू द फॉर्मूला, लेकिन असल चीज़ तो ये है सर कि हम अपने जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, अपने जो लीकेजेस हैं, हम जो चोरियां हैं, हम जो बाकी सारा कुछ हो रहा है उसको अगर हम एड्रेस कर लेंगे तो ये जो एक्सोनोजस शॉक्स हैं ये इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू एब्जॉर्ब। और फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई डोंट वांट टू
जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब और लगारी साहब ने बात करनी है, इंशाल्लाह आप इसमें फर्दर बेहतरी की खबर सुनेंगे। इकराम होती साहब जी, जनाब वाली। मैं 2 चीज़ों के बारे में बस पूछ रहा हूँ सर, जो क्या मेडिसिन और फूड के मामले में टैक्सेशन पॉलिसी जो है उसमें कोई मेजर चेंज आ रहा है? नहीं, आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है? देखें, जहाँ तक एज आई सेड कि वी हैव नाउ रिसीव्ड प्रपोजल्स फ्रॉम ऑल एसोसिएशन, और हो सकता है उसमें कुछ और भी अभी आते जाए और थोड़ा सा हो। हम वी आर नाउ टेकिंग ईच एंड एवरी प्रपोजल एंड थिंकिंग थ्रू इट कि इसमें क्या इसकी इकोनॉमिक वैल्यू कंसिडरेशन है। और आपको जैसे मालूम है कि फार्मा में तो ऑलरेडी बेहतरी आ चुकी है, फार्मा की एक्चुअली एक्सपोर्ट बढ़ी है, फार्मा इंडस्ट्री इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेल। टैक्सेशन साइड पे बात करनी सर जी, टैक्सेशन साइड पे मुझे बताएं कि टैक्सेशन साइड में क्या आप अपने टारगेट जो हैं फूड और सेक्टर से और फूड से क्या मुराद है आपका? फूड इतनी बड़ी फूड एक तो पैक्ड फूड है, वो हर जगह जाके किसी न किसी शक्ल में उसकी टैक्सेशन हो रही है। जी जी, दूसरा है कि वो जो प्रोसेस फूड है लेकिन पैक्ड या उसको अभी तक टैक्सेशन के दायरे में नहीं लाया गया, ठीक। वो कितना है और उससे कितना टारगेट आप हासिल करना चाहते हैं मेडिसिन पे भी और उसमें भी? नहीं Retail side पे। नहीं, वो तो हमारा, देखें, अगर कोई जो स्पेसिफिक प्रपोजल लाए हैं हम उनको, आई डोंट वांट टू प्रीएम्प्ट दैट। जो भी हमारी डिस्कशन होगी इंशाल्लाह ड्यूरिंग द बजट प्रोसेस वो सामने आएगी। Thank you. मैडम ईमा फ्रॉम AFP। Thank you very much for your time. It's been quite a busy week in trade policy, and I wanted to get your reaction to Donald Trump's tariff on Pakistan. What Pakistan's response will be, and what effect do you think this is going to have on Pakistan's trade? Okay. I'm surprised this question wasn't asked earlier, but it's okay. So there are a few things which I just want to mention around that. First of all, US for us is a very important strategic partner across the board. You know it well. It's also our largest trading partner in terms of the exports which go to the US. Now, what we have done in the last few days, the Prime Minister has constituted 2 committees. One is a steering group which is primarily around ministers and some of the leading businessmen and academicians and secretaries. I'm convening that committee, and then there is a working group which is being led by Secretary Commerce. So we've been meeting over the last couple of days. We continue to meet over the next few days with a view that, you know, from my perspective and where I sit, what I would like to say is that you know, that you should never let a good crisis go to waste. So we are looking at it both as a challenge and as an opportunity. On the opportunity side, it's a relative value discussion in terms of what's happening with other locations and jurisdictions, and on the challenge side, what we can do in terms of the negotiation with the US administration. So in the next couple of days, a few days, we are going to finalize our recommendations to the Prime Minister, and I can also tell you that with the approval of the Prime Minister, because ultimately he has to approve it, we intend to send a high-level delegation to Washington to get our views across and to ensure that we want to be a partner which is a long-term strategic partner, and we are working on the package as of now, and we'll finalize that so that you know, this discussion can go forward with the US administration. So as I said, we are very constructively engaged at this point in time, and
and that's how we are looking at the way forward. No knee-jerk reaction. Sanaullah Saab down se. That's good. Sorry, if we just, add what do you expect the impact to be on Pakistan in the short term? sorry? Can you just explain what you think the impact will be on Pakistan in the short term? Yeah, I mean, anything which is, goes up by sort of, right now, as you know, it's a two-phase thing. So the immediate imposition is 10%, and 29% goes into effect on April 9. So between now and then, we need to, we want to get our views across, and see how we can work with the administration to mitigate any impact. But from where we sit at this point in time, we do think that this is not something which we are overly concerned about, but at the same time we do want to address it, and as I said, both in the context of the challenge. The challenge is from a relative value perspective, as you can appreciate, right? And the opportunity is in terms of the relative value perspective as well. But we want to make sure that we, in terms of our representations, put forward how we see it in the medium to long term as a win-win situation, both for US and for Pakistan. What exactly will those views be that you want? No, we, as I said, that's work in progress. So, as I said, we have to, it's still, as I said, these committees are working very assiduously at this point in time, and I am simply not in a position to report anything till we have presented to the PM and gotten his endorsements on the way forward. But as I said, we will be sending a high-level delegation to the US to have further discussions. Thank you. Sanaullah Saab. Thank you. सर आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अच्छा आप जी। बीसीसी के चेयरमैन हैं, जी बताइए। आप कंपटीशन लॉ जो है उसके भी आप कह सकते हैं, वो भी आप इम्प्लीमेंट करें। सर आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि इस मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर शुगर की प्राइस 145 से 164 रुपए तय कर देता है, जब आपके पास लॉ भी मौजूद है? इससे मुझे कमेंट आपका चाहिए। दूसरा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आप गुजरात की तादाद में इजाफे को जस्टिफाई कर रहे हैं, हालांकि आप लाखों मुलाजमीन को राइट साइजिंग के तौर पर निकालने की बात करते हैं। वो भी आप इस्लाह यही है कि आप पर इतना पॉलिटिकल प्रेशर है, 1 महीने से आपने राइट साइजिंग की मीटिंग भी नहीं की, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे 50 वज़रा, 450 SOE और इतने ही डिवीजन, इतना बड़ा स्ट्रक्चर आप उसको कम करने के लिए, और आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको? दोनों का जवाब जी, थैंक यू जी। आपसे माशाल्लाह हमेशा चैलेंजिंग सवाल आते हैं। तो देखिए, मैं आई ऑलवेज मेंटेन दैट आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू पर्सनैलिटी। जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि जो इन्फ्लेशन है ये अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वेयर इट इज़, और देखें ये मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ, whether it's the Ministry of Finance, whether it's the State Bank, whether it's the government overall, we were not expecting this kind of improvement in the macro indices. मैं आपको बड़ी मैं ह्यूमिलिटी के साथ आपको ये बात कर रहा हूँ। तो नहीं, लेकिन मेरी आप गुजारिश मेरी सुन लीजिए। तो अब ये है कि हमने इसका आगे जो है फ़ायदा कैसे पहुँचाना है, हमने इसको आगे कैसे लेकर जाना है। तो जैसे मैंने कहा कि कैबिनेट ने हमें डायरेक्ट किया है कि ECC में हम इसको मॉनिटर करें, और इसको देखिए, सिर्फ शुगर की बात नहीं है इसमें, और ये बड़ी ही दुख की बात है, एक्चुअली बड़ी दुख की बात है कि रमज़ान से पहले मैं जब प्राइवेट सेक्टर में भी था, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में भी था, घी, ऑयल, चिकन और बाकी जो ये चीज़ें थी, ये हम जो दालों कुछ दालें, सारी दालें नहीं, ये हम क्या करते हैं एज अ कंट्री, ये क्या हमारा ईथोस है कि उसको हम आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, रमज़ान को हम एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि जहाँ इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे जा रही हैं, बाकी सारे इंडिसेस नीचे जा रहे हैं। तो देखें, ये हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक है इशू, और उसको हम ECC में, इसीलिए मुझे कहा गया कि इसको रेगुलर एजेंडा आइटम बनाएं, और इंशाल्लाह हम बना रहे हैं, और हम इसको
सूबों की मुशावरत से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वहाँ होगा, हम उसको इसको रेगुलराइज भी करेंगे, इम्पोज भी करेंगे, एंड दिस इज़ हाउ विल टेक इट फॉरवर्ड। जो आपकी देखें राइट साइजिंग वाली बात है, मैंने पहले जिक्र किया और ये आपके सामने है। कुछ मिनिस्टर साहबान जो हैं वो 3-4 मिनिस्ट्रीज थे और वो मैं एक आपके जिक्र कर देता हूँ जस्ट एज अ केस एंड पॉइंट। प्राइवेटाइजेशन, you need someone who is dealing with that day in and day out, क्योंकि मैं खुद एक M&A बैंकर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये प्रोसेस ऐसे नहीं चल सकता कि कमेटीज़ में चला जाए, कमेटीज़ में डिस्कस हो जाए। ये तो प्रोसेस है विद द सेल साइड एडवाइज़र। आपने हर दिन ये बात करनी है कि ये हम कहाँ हैं, किधर खड़े हैं, कहाँ इन्वेस्टर्स हैं, कितने इन्वेस्टर्स आए, किन के साथ हमने बात की, कहाँ डेटा रूम है, कहाँ हम चल रहे हैं। दैट्स हाउ यू हैव टू रन दिस। तो मैं जो राइट साइजिंग है इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको जिक्र किया है, हम उसको लेकर आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इसको खुद देख रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम इसको आपके सामने भी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटेटिव पार्ट ऑफ इट कि हमने क्या कर दिया, किन चीज़ों को जिम कर दिया, किन को हमने बंद कर दिया। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ नारे लगाने से बात नहीं होगी। दिस हैज़ टू कम डाउन इन टू फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। तो 400 अगर अटैच अपार्टमेंट्स हैं, अगर हमने अगले 2-3 साल में हम आपको ना दिखा सके कि मुतवातर इसकी कॉस्ट कैसे कम हो रही है, देन दिस इज़ ऑल एकेडमिक डिस्कशन। तो ये इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास राइट नाउ आई हैव बीन टास्क्ड विद दिस, इंशाल्लाह हम इसको रिगर के साथ लेके जाएंगे। बाकी आपकी इंफॉर्मेशन मेरे से भी बेहतर होती है, लेकिन राइट साइजिंग पे मैं चाइना में था, उस वक्त भी मेरी कमेटी मीटिंग हुई है, लेकिन इसलिए मैं आपको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है। देखिए मेरा एक लास्ट चीज़ मैं बात करना चाहूँ। देखिए मेरे लिहाज से मैं अपनी एक बात ज़रूर कर दूंगा। एनी एंड एवरीथिंग इन फ्रॉम विच द गवर्नमेंट शुड गेट आउट। 2 क्रॉप्स हैं जहाँ गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, मेज एंड राइस। इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, प्राइसिंग क्या हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें ठीक चल रही हैं। और जहाँ जहाँ हमारी इंटरवेंशन है, या वीट है या शुगर है, वहाँ वहाँ हमारे मसले मसाइल हैं। तो मैं आपको एक ओवरऑल स्ट्रेटेजिक व्यू मैं अपना दे रहा हूँ कि हमें हर चीज़ से निकल जाना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी सारी जो क्रॉप्स हैं बेहतर भी होंगी। और जिस तरह मेज़ और राइस वाली हमारी सिचुएशन है कि वो एक्सपोर्ट भी हो रही है, सारी चीज़ें भी हो रही हैं, हम सेल्फ सफिशेंट भी हैं। जहाँ जहाँ से हुकूमत निकल सकती है, हुकूमत को निकल जाना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस। शकील साहब जी जरा थोड़ा सा जी हम सर ये बताइएगा कि 2 क्वेश्चन मतलब से, एक तो अमेरिकी जो टैरिफ है उसके मामले पर कोई पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए कोई पैकेज भी अनाउंस करने का इम्कान है, जैसे मुस्लिम कंट्रीज ने प्रोटेक्ट करने के लिए पैकेज भी अनाउंस कर दिए हैं। और सेकेंडली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स हैं उन्होंने धरना भी दिया था, प्रोटेस्ट भी किया, उनके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट भी हुआ था, राना सनावड़ा की तरफ कमेटी थी, फाइनेंस के लोग भी थे। तो बजट से पहले उनको कोई रिलीफ देने का इम्कान है, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस या बाकी चीज़ें बजट से पहले या बजट के दौरान किस किस्म का रिलीफ मिल सकता है? जी पहली बात तो आई जस्ट रिस्पॉन्डेड टू दैट एज वेल। बात इस वक्त सर ये है कि हमने अब जो किसी भी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट नहीं करना है, दे हैव टू इंश्योर कि वो इनोवेट करें, अपने आप को इंटरनेशनली कम्पिटिटिव बनाएं। क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया कि फाइनेंसिंग कॉस्ट अब आपके काबू में आ गई है, आपकी एनर्जी कॉस्ट जो है वो दोनों चीज़ें हैं मूव इन द राइट डायरेक्शन। जो पहले बात होती थी कि इंटरनेशनली रीजनली हम कम्पिटिटिव नहीं है, हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट ये है। अब टैक्सेशन में हम इंशाल्लाह ज़रूर उनके जो आए हैं तजवीज़ें उनको हम ज़रूर आगे लेके चलेंगे। उसके अलावा एज यू नो सम ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर्स विच आर SME, विच आर IT एट्सेट्रा, वहाँ ऑलरेडी सब्सिडाइज फंडिंग जा रही है। वी आर ऑल्सो गिविंग फर्स्ट लॉस गारंटीज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन इस सिलसिले में हम फर्दर कोई पैकेज लाने का इरादा नहीं रखते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ द इंडस्ट्रीज नीड टू बी कम्पिटिटिव टू मूव फॉरवर्ड। और दूसरी जो आपने बात की है कि जी जो एक्सपेंडिचर और जो तनख्वाह तबके का, तो हमें पहले जो टैक्सेशन है उसका हमें देखना है।
और दूसरा ये है जी कि जो इन्फ्लेशन रिलेटेड मेजर्स हैं, उसमें इन्फ्लेशन रिलेटेड मेजर्स ये प्राइम मिनिस्टर साहब और कैबिनेट की स्वाबदीद है, और लेकिन दीज इस प्री मेच्योर डिस्कशन टू हैव कि हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, लेकिन वो इन्फ्लेशन के मुताबिक ही आपने आगे लेकर चलना है ना। हाँ भाई, जो इन्फ्लेशन होगी उसके मुताबिक ही करेंगे ना। अगर 22%, 30% या 24% या 40% इन्फ्लेशन है तो उसके मुताबिक चलेंगे। अगर सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन आ गई है तो उसके मुताबिक चलेंगे। तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे ही होता है और पब्लिक सेक्टर में भी ऐसे ही होना चाहिए। मुदस्सर राना साहब दुनिया से। जनाबे वाली सर, एक तो ये बता दें कि IMF के साथ एक तो आपका हुआ है EFF, सेकंड आपका है RSF। अभी जो कमिंग बोर्ड अप्रूवल है, इसमें $1 बिलियन आपका आ रहा है EFF के थ्रू, और RSF के थ्रू जो फर्स्ट ब्रांच है इसका साइज न है और उसके साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सेकंड सर, ये मैं अब साथ साथ करता जाऊँ ताकि मुझे लिखना। तो इंशाल्लाह ताला जैसे बोर्ड अप्रूवल होती है तो नेक्स्ट ट्रांच फॉर EFF इज $1 बिलियन, और जो RSF है उसको आप ऐसे ही समझें जैसे वर्ल्ड बैंक या ADB की डिस्बर्समेंट्स होती हैं। वो अपफ्रंट डिस्बर्समेंट नहीं होगी, वो आपको डिस्बर्स करेंगे। उसमें हमने 13 रिफॉर्म मेजर्स उनके साथ एग्री किए हैं। तो पहली एक डिस्बर्समेंट हो जाएगी, मुझे नहीं अभी क्वांटम का पता, मुझे एक्चुअली नहीं पता, वो मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज के साथ हम बात करेंगे और उससे पता चल जाएगा। बट इट विल नॉट बी जिस तरह ये है कि ये अपफ्रंट होगा, अपफ्रंट नहीं होगा। फिर उसमें जो रिफॉर्म मेजर है वो आएंगे, हमें इवैल्यूएट करेंगे। अगर वो हमने कंप्लीट कर दिया जिस तरह हम EFF में करते हैं तो हमें नेक्स्ट ट्रांच दे देंगे। अगर हमने नहीं किया तो फिर उसको नेक्स्ट रिव्यू में ले जाइए। दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। बट $1.3 बिलियन इज नॉट गोइंग टू बी डिस्बर्स्ड अपफ्रंट। So just to be very clear about that, that's how it's going to work. आखिरी सवाल शोएब निजामी साहब ARY से। बस एक की मदद है। आखिरी सवाल शोएब। मेरा सवाल ये है कि इस पर काम करें क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, इसमें पाकिस्तानी की इंडस्ट्री बाहर पड़ी हुई है, उसको लाने के लिए तो आपका अपना कोई टारगेट नहीं, कब तक बात करा सकेंगे? देखिए, अर्ली डेज ऑन दिस मैं आपको जिक्र करता हूँ कि ये जो क्रिप्टो वाली हमने डिस्कशन आगे हम लेकर जा रहे हैं, लेके क्यों गए, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली इसमें काफ़ी वी हैव टू प्रोसीड विद कॉशन, बिकॉज काफ़ी इस पे लोगों की जो है रिजर्वेशंस रही हैं इन द पास्ट। स्पेशली वी हैव टू बी केयरफुल कि हम FATF से बाहर निकलें, and we don't want to go back and get into a situation later on as well. लेकिन the reality is what? जो नंबर सामने आए हैं कि जो इस वक्त number of people who are dealing with this and the volume which is being traded, and I'm not going to get into that discussion, but it's significant enough and substantial enough कि ये ज़रूरी समझा गया कि हम इसको कम से कम फॉर्मलाइजेशन जितनी हम कर सकते हैं हम इसको उस सिम्त में लेकर आएँ, क्योंकि अगर हम इसको लाइसेंसिंग रिजीम में ले आएँ और हर चीज़ विद द राइट सेफ गार्ड, तो दिस विल बी इन द राइट डायरेक्शन। जो मेरे पास फिगर्स आई हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल एंड वॉल्यूम, देखिए इंडिया इज़ नंबर 1, इंडोनेशिया इज़ नंबर 2, US इज़ नंबर 3। हम 23 में 10वें नंबर पे थे, अब हम 7वें नंबर पे हैं। इफ दैट्स व्हाट इट इज, जिस तरह हम बात करते हैं इन द ओल्ड इकोनॉमी पर्सपेक्टिव कि हाउ डू वी ब्रिंग द इनफॉर्मल इकोनॉमी इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी, क्योंकि आज हम जो भी बात करते हैं कि हमारी GDP इतनी है 300 whatever right billion dollars, and if this informal economy comes in, this will double. This is all about the new economy. And in the new economy, at least we need to explore whether we should play a role, and already our netizens and citizens are playing a role. तो इसको मेन स्ट्रीम हम कैसे लेकर, ये दिस इज वन पार्ट ऑफ इट, और क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ और हम कैसे इसको आगे लेके। 2 other things which other countries are doing, from US to Bhutan, हम उसको इग्नोर करना चाहें हम इग्नोर कर दें, लेकिन ये हो रहा है सारी दुनिया में। तो उसमें वेदर इट्स नाउ टोकनाइजेशन ऑफ योर एसेट्स और इट्स बिटकॉइन माइनिंग, these are all discussions which are linked with overall, इसको अब क्रिप्टो का हम बात करते हैं, it's all in the context of Web 3.0,
एंड ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन में आप ऑलरेडी कुछ यूज केसेस ला रहे हैं, जिस तरह अभी स्टेट बैंक के थ्रू आपने ये किया है और बैंकों ने ये किया है कि वो ब्लॉकचेन के थ्रू ही है ना, जो हमने KYC या EKYC की तरफ आप लेकर गए हैं कि अगर मैंने एक बैंक के साथ अकाउंट खोला हुआ है, इस दूसरे बैंक के साथ मैं अकाउंट खोलना चाहता हूं और मुझे वही सारी डॉक्यूमेंटेशन और सारा कुछ वापस करना पड़ता है, तो ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू गेट ऑन लोडेड इनटू दैट ब्लॉकचेन, इनटू दैट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, ऑफ कोर्स विद माय कंसेंट, एंड दैट्स सो दैट माय अकाउंट कैन बी ओपन। सो वी आर एक्चुअली बिहाइंड ऑन ऑल ऑफ दिस। तो हम इसको बिल्कुल एक मुनासिब तरीके से, एक बड़े रेगुलेटेड तरीके से इसको आगे लेके जाएंगे। बट आई एम वेरी क्लियर, this is part of the new economy and we have to ensure that we are going forward, we are part of that new economy as we go forward. Maji, again I just want to thank all of you, especially being here on a Saturday, and it's a very opportune moment to interact, so thank you very much again. Thank you, sir.